करवाए। देखो ये कोलकाता वाला शिविर है, कोलकाता का शिविर अभी बस का समापन हो रहा है। आज लास्ट प्रवचन है इसका। वेद ने जानवा रोकावा जेवुं पण नथी। वेद में रोकाई जाए ने जानी ठरी जाए। आ 9-10 गाथा पूरी थई। हवे विचार आवे छे 13 गाथा लेवानो। 13 गाथा लेवानो विचार केम आव्यो के 11મી ગાથામાં એમ કહ્યું કે ભૂતાર્થને આશરે સમ્યક દર્શન થાય। અભૂતાર્થ જે પદાર્થ છે, પર્યાયો વ્યવહાર, એ બધું અભૂતાર્થ છે। ભૂતાર્થને આશરે સમ્યક દર્શન થાય છે। વ્યવહાર સગવડ અભૂતાર્થ તેને આશરે સમ્યક દર્શન થતું નથી। પર્યાયને આશરે સમ્યક દર્શન થતો નથી। ત્રિકાળી દ્રવ્યને આશરે સમ્યક દર્શન થાય છે। व्यवहार नहीं भूतार्थ दर्शित, शुद्ध नहीं भूतार्थ छे। भूतार्थ आश्रित जीव सुदृष्टि निश्चय होय छे। भूतार्थ ने आश्रय जीव सम्यक दर्शन पामे छे। भूतार्थ ने आश्रय एम बात करी। हवे 13મી गाथामां छे तो सम्यक दर्शन नी गाथा, पण यहाँ पण अंदर में तो आपसे भूतार्थ नहीं, आत्मा नो आश्रय करो। पण बहु अलौकिक बात कपूरवातामां भरी छे। गुरुदेव पधार्या गवटी, आ गवटी वाला बैठा छे नेमीचंद भाई। ત્યાં ઉત્તમ સિદ્ધાંત શાસ્ત્રી પણ આવ્યા હતા, હું પણ ગયો હતો। उत्तम सिद्धांत शास्त्री ने कहूं, मैं पूछू, देखो पंडित जी, मैं तो बहुत शास्त्र वांच्या नहीं, तमे तो घना शास्त्रों वांचेला छे, अभ्यास छे तमे। पंडित जी एम कहूं, मैं पूछू, मैं कहूं आ भूतार्थ नव तत्व ने भूतार्थ ने केवी रीते जाणवा? एक ने तो भूतार्थ ने जाणी शकाय, भूतार्थ थी एक ने तो जाणी शकाय, पण आ नव ने पण भूतार्थ थी जाणाय के केवी रीते? मैं कहूं आ बात आ 13મી गाथामां छे, एवी कोई जग्याए बीजी जग्याए छे के नहीं लालचंद भाई? कोई जग्याए नहीं, एक फक्त समीसारमा है। नव तत्व ने भूतार्थ नहीं थी जानो, एनो अर्थ अभूतार्थ नहीं थी, व्यवहार नहीं थी। नव तत्व ने जानता 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 अनंत काल गयो, व्यवहार नहीं थी, नव तत्व ने जाण्या એટલે પર્યાય ને સાપેક્ષ થી જાણ્યું, પણ પર્યાય ને નિરપેક્ષ થી જાણ્યું નથી। ક્યાંય ને ક્યાંય સંબંધ રાખ્યો, આત્માથી સંબંધ ને કર્મથી સંબંધ। पर्याय ने कर्म संबंध थी सद्भाव अभाव અને આત્માના સંબંધથી જોઈ એ અભૂતાર્થ નહીં છે, એ પર્યાય વ્યવહારની વિશે થઈ ગયો। માટે એ કપૂર વાર્તામાં કરે છે, પર્યાય સત અહેતુક છે સિદ્ધ કરવું છે અને નવમાં છુપાયેલી આત્મજ્યોતિ કાઢો। પણ જો ભૂતાર્થ ને નવને જાણતો, વ્યવહાર ને નવને જાણતા તને દ્રવ્ય હાથમાં નહીં આવે। એમ છે, પર્યાય ને ભૂતાર્થ ને જાણતા દ્રવ્યના દર્શન થાય, દ્રવ્ય ને ભૂતાર્થ ને જાણે તો દ્રવ્યના દર્શન થાય। આ તો સમયસાર છે। હે ગ્રંથાધિરાજ, તારામાં ભાવો
બ્રહ્માંડના ભેદા. હા હા હા. એ પ્રમાણે શુદ્ધથી જાણવું તે સમ્યક છે એમ સૂત્રકાર કહે છે. આગળના કળશનો ભાવાર્થ નવ તત્વમાં પ્રાપ્ત થયેલો આત્મા નવ તત્વમાં નવ તત્વથી ભિન્ન આત્મા રહેલો છે. એવા આત્માને અનેક રૂપ દેખાય છે. જો તેનું ભિન્ન સ્વરૂપ વિચારવામાં આવે તો તે પોતાની ચૈત્ય ચમત્કાર માત્ર જ્યોતિને છોડતો નથી. નિજ ભાવને છોડે નહીં ને પર ભાવ રૂપે થાય નહીં. હવે ગાથા 13. હવે આ સમાપન થાય છે ને, ક્લોઝિંગ, છેલ્લા દિવસો. કાલનો દિવસ એક થયો, આજ તો 29 તારીખ પૂરી થઈ ગઈ ને, એક જ દિવસ થયો ને. બે દી નથી, હવે એક જ દિવસ છે. ભૂતાર્થથી જાણેલ જીવ, ભૂતાર્થી જીવને જાણો, ભૂતાર્થી અજીવને જાણો, ભૂતાર્થી પુણ્ય પાપને જાણવા, ભૂતાર્થ નહીં આશ્રમને જાણવા, ભૂતાર્થ નહીંથી સંવરને જાણવું, પર્યાયને ભૂતાર્થથી જાણવું. એમ નિર્જરા બંધને મોક્ષ જે સમ્યક છે. નવ તત્વના ભેદો જે પર્યાય રૂપ છે, નવે પર્યાય રૂપ છે. પણ એને જો તો ભૂતાર્થ નહીં જાણીશ તો દ્રવ્યદર્શી થઈ જશે. હા, એની કર્તા બુદ્ધિ જશે અને એમાં જ્ઞાતા બુદ્ધિ ઉડી જશે. હવે એનો અર્થ, ગાથાનો અર્થ, ભૂતાર્થ નહીંથી જાણેલ જીવ અજીવ વળી પુણ્ય પાપ તથા આશ્રવ સંવર નિદ્રા બંધ અને મોક્ષ એ નવ તત્વ સમ્યક છે. નવ તત્વ સમ્યક છે એમ કહ્યું. એક અંધ પાષાણ હોય છે અને એક સુવર્ણ પાષાણ હોય છે. તો અંધ પાષાણ માંથી આ પથરા છે, એમાંથી તો સોનાની રજ પણ મળે એમ નથી. પણ અંધ પાષાણ ને બદલે બીજા એક સુવર્ણ પાષાણ ખાણમાંથી નીકળે ને પથ્થર, એને સુવર્ણ પાષાણ કહેવામાં આવે છે. એમાંથી તો સોનું નીકળે. એમાં નવ તત્વમાં થી તો શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થાય. એમાં છે અન્વય રૂપે રહેલો છે. પ્રત્યેક પર્યાયની સાથે પણ પર્યાયથી રહી, પર્યાયની સાથે પણ પર્યાયથી ટીકાય નહીં. આ જીવ આદિ નવ તત્વો, પેલો તત્વ છે જીવનો. એ જીવમાં જીવ છુપાયેલો છે. ઈ શું? જીવમાં જીવ છુપાયેલો છે. વ્યવહાર જીવ 10 પ્રકારના પ્રાણથી જીવ છે. વ્યવહાર જીવ કહેવાય. 5 ઇન્દ્રિય પ્રાણ, મન વચન ને કયા, શ્વાસ ને આયુ, એ 10 પ્રકારના પ્રાણ છે ને, એ વ્યવહાર જીવ છે. અને વ્યવહાર જીવની સાથે અન્વય રૂપથી સામાન્ય જીવ છે, તે ખરો જીવ છે, પરમાર જીવ છે. કે છે કે જીવને પણ ભૂતાર્થી જાણ. એ 10 પ્રકારના પ્રાણ છે, એ વ્યવહાર જીવ છે, એને જીવ ન માન. જીવમાં જીવ રહેલો છે. પછી પુણ્ય પાપમાં જીવ રહેલો છે આવતો. આ તો જીવની પર્યાય જે છે 10 પ્રકારની, એમાં છુપાયેલી આત્મજ્યોતિ છે. એ તો 10 પ્રકારના પ્રાણ ને વ્યવહાર નહીં, જે જીવ કહે છે વ્યવહાર ને સતતપણે 10 પ્રકારના પ્રાણ થી જીવ જીવે છે, જીવ કહેવાય. એમાં આવે, ઘણી જગ્યાએ આવે. તો કહે છે કે ખરેખર જીવ નથી.
અભૂતાર્થથી વ્યવહારથી તેને જીવ કહેવામાં આવે છે. અભૂતાર્થ છે. હવે અજીવ બીજો શબ્દ આવ્યો, અજીવ. અજીવને પણ અભૂતાર્થની રીતે જાણ્યો કે આ શરીર છે તે જીવ છે ઇત્યાદિ, અથવા અજીવ છે એવો વિકલ્પ. અજીવના લક્ષ્ય જે વિકલ્પ થાય એ પણ અજીવ છે, પણ એને તો ભૂતાર્થની જાણ. એટલે કે એ વિકલ્પ છોડીને એ વિકલ્પની સાથે સાથે રહેલો સામાન્ય અન્વય રૂપાત્મા એને જાણને આ 10 પ્રકારના પ્રાણ છે એ જીવના છે ને કર્મના છે ને એ સાપેક્ષ છોડી દે. હવે એ 10 પ્રકારના પ્રાણ પણ સમયવર્તી હોવાથી સપ છે. સાપેક્ષ પરિણામને સાપેક્ષ જેવા ન જોવું. સાપેક્ષ જોવું તે વ્યવહાર નહીં છે, અને નિરપેક્ષ જોવું તે નિશ્ચય નહીં છે. પ્રત્યેક પર્યાય સપ સ્વહેતુક ક્યારે ક્યારે પણ અહેતુક રહેલી છે. રાગની ઉત્પત્તિ આવશે પુણ્ય પાપમાં. વળી પુણ્ય પાપ બીજો શબ્દ પુણ્ય પાપના પરિણામ થાય છે પર્યાયમાં. તીવ્ર કષાય ને મન કષાય એને તે વ્યવહાર નહીં જોયું. કથનચિત એ જીવના પરિણામ છે, કથનચિત ઉદ્ગલના પરિણામ. એમ તે જીવ સાપેક્ષથી પણ જોત, કોઈ વખતે કર્મ સાપેક્ષથી પણ જોત. એવું તો તે અનંત કાળથી અનંતવાર થયેલું. પણ જે પુણ્ય પાપ ને જીવનો સંબંધ નથી ને કર્મનો સંબંધ નથી, એ તો સત અહેતુક છે. પુણ્ય પાપના પરિણામ એ તો સ્વભાવ થઈ જશે. ગુરુદેવની ચર્ચા થઈને ગણેશ પ્રસાદ વડીની સાથે, ત્યારે ગુરુદેવે કહ્યું રાગ નિરપેક્ષ છે, કર્મના ઉદયથી રાગ થાય એમ છે. ત્યારે જવાબ આવ્યો કે તો સ્વભાવ થઈ જશે કે આ પર્યાય સ્વભાવ. બરાબર. કોઈ સમજે કોણ? પર્યાય સ્વભાવ. પર્યાય સ્વભાવથી પર્યાયમાં રાગ થાય છે. જીવથી પણ નહીં ને કર્મથી પણ. જીવ કરતા ને પુણ્ય પાપ કર્મ એમ નથી, અને કર્મ નો ઉદય કરતા અને પુણ્ય પાપ કર્મ એમ પણ નથી. અને પુણ્ય પાપ પ્રગટ થાય એમાં જીવ કરતા ન હોય તો કઈ નહીં, પણ નિમિત્ત કરતા ખરો કે નહીં, કે નિમિત્ત કરતા નથી. કે એમાં કર્મ નો ઉદય નિમિત્ત કરતા ખરો કે નહીં, કે ના એમાં એ નથી. પુણ્ય ને પાપ ના પરિણામ આ ક્ષણિક ઉપાદાન થી જોતો, નૈમિતિક થી ન જોવે. આ શું કે છે આમાં કે નવ તત્વ ને ભૂતાર્થથી જાણતા સમ્યક દર્શન થાય એમ કહ્યું. પણ આગળ તત્વ પણ ભૂતાર્થ નહીં, તત્વાર્થમાં છે એ પણ એક વચન પછી લગાડ્યું છે, એટલે એવા ભૂતાર્થ ને આવી ગયું. સમય સાથ હોય, અલૌકિક દૈવી શાસ્ત્ર લાગે. ભૂતાર્થથી આત્માને જાણતા તો સમીકરણ થાય, પણ વળી ભૂતાર્થ નહીથી પર્યાય કેવી રીતે જણાવે? કે પર્યાય તો ભૂતાર્થનો વિષય છે, વ્યવહારની વિષય છે, કે સાપેક્ષથી જો તો વ્યવહારની વિષય છે. ભૂતાર્થથી જો તો નિરપેક્ષ છે. નિરપેક્ષ જોતા નિરપેક્ષ દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ આવશે. કાં જીવ કરે ને કાં કર્મ કરે, કાં જીવ નિમિત્ત ને કાં કર્મ નિમિત્ત, ક્યાં ને ક્યાંય પરિણામ ને પતિ સાથે સંબંધ રાખવો. એ રીતે તો નવ તત્વ જોયા અનંતકાળથી અનંતવાર. હવે ભૂતાર્થ રહેતી પરિણામ ને જો. ફૂલચંદ સિદ્ધાર્થ શાસ્ત્રીને પૂછ્યું કે આ ભૂતાર્થ રહેતી નવને જાણવા એવું કોઈ શાસ્ત્રોમાં છે? તો કે લાલચંદભાઈ આ એક જ જગ્યાએ છે, સમય શાસ્ત્ર.
નવની આગળ ભૂતાર્થ લગાડ્યો હોય તો આ એક મહાપુરુષે લગાડ્યો છે. જેનું ત્રીજું નામ છે યથાર્થ છે. પુણ્ય પાપ ને ભૂતાર્થ ની કેમ જોવા કે આત્માનો કરતા નથી, આત્મા એમાં નિમિત્ત નથી, એ કર્મથી થતા નથી, કર્મ એમાં નિમિત્ત નથી. લે નિમિત્ત નથી તો સ્વભાવ થઈ જશે કે આ પર્યાય સ્વભાવ છે. લે એ પર્યાય સ્વભાવ છે. એની યોગ્યતાથી રાગ ઉત્પન્ન થાય છે. યોગ્યતાનું પુસ્તક છપાયું છે ભાઈ. પરિણામ પણ યોગ્યતા અનુસાર થયા કરે છે, ઉત્પાદન થયા કરે છે. એનો કરતા તો નથી, પણ એનું કોઈ કારણ તો નથી. કર્તાની સાપેક્ષતા પણ નથી, નિમિત્તની પણ સાપેક્ષતા એમાં નથી. સ્વયં સ્થિતિના સકાળે પરિણામ પ્રગટ થાય છે, વ્યય થાય છે. બહુ ઊંચા પ્રકારની 13મી ગાથા છે. પુણ્ય પાપ ઉતારતી જાણ આશ્રવ, પુણ્ય પાપ પડીને આશ્રવ. પુણ્ય પાપ એક પંડિતજીએ મને પૂછ્યું ઇન્દોરમાં, મોટા પંડિત છે અત્યારે, છે નામની જરૂર નથી, કે લાલચંદભાઈ આ 7 તત્વ એક જગ્યાએ આવે છે અને બીજી જગ્યાએ 9 તત્વ આવે છે, તો એટલો કેમ એમાં ભેદ કર્યો? તો કહ્યું કે પુણ્ય પાપથી આશ્રમને જુદું પાડવાનું કારણ એટલું છે કે પુણ્ય પાપ તો પુણ્ય પાપ છે અને આશ્રમમાં પુણ્ય પાપ ગર્ભિત છે, પણ પુણ્ય પાપમાં યોગ ગર્ભિત નથી, આશ્રમમાં ગર્ભિત છે. વિખ્યાત પ્રવૃત્ત કષાયને યોગ નામનો આશ્રમ છે, એ પુણ્ય પાપમાં નથી. માટે 7 ને બદલે 9 કર્યા છે. કુંદ ભગવાને બરાબર છે. યોગથી ભલે બંધ ન થાય પણ કર્મનો આવાગમન થાય, એમાં એ નિમિત્ત કહેવાય. એટલે એટલું આશ્રમમાં વધારે છે. વિખ્યાત વ્રત કસાયને યોગ માટે, યોગને બતાવવા માટે પુણ્ય પાપથી આશ્રમ જુદું મૂક્યું છે. આશ્રમ પછી સંવર સદુપયોગ. એ કે છે કે ભૂતાર્થ ને અભૂતાર્થથી વ્યવહારથી જો વ્યવહાર નહીં જોવામાં આવે તો એ સંવર છે, એમાં આશ્રવની અભાવની અપેક્ષા આવે છે, કર્મના અભાવની પણ એમાં અપેક્ષા આવે છે, માટે વ્યવહાર થઈ જાય છે. નિરપેક્ષ જોને તો સંવર ને એ નિરપેક્ષ જોતા એને આશ્રવના અભાવની પણ અપેક્ષા નથી અને કર્મના અભાવની પણ એમાં અપેક્ષા નથી. સ્વયં તે યોગ્યતા સત અહેતુક છે, પર્યાય સત અહેતુક છે, વિકારી પર્યાય પણ હો. આ તો સંવર, આત્મા કરે તો થાય સંવર કે ના, સંવર થાય એમ આત્મા નિમિત્ત છે કે ના. એ નિયમસારની 5 રતનની ગાથા છે, અપૂર્વ અજોડ ગાથા છે. એમાં તો એટલું બધું કહ્યું છે કે આત્મા કરતા નથી, કાર્યતા નથી, અનુમોદક નથી ને કારણ પણ નથી. આ બધા પરિણામો લેખા, વાતો બધી પરિણામની આવી ગઈ, પણ એનો કરતા હું નહીં, એનો કાર્યતા નહીં, અને બીજું કરે છે એ મને ખબર છે, પણ હું એને અનુમોદન કરું તો अरुण जी मीना रमेश जी अभी बंद करना है यहाँ। मैंने अब अपने लिए कितने मिनट और चलाने का है?
नहीं, क्योंकि आपको कितना 9:12 हो गए हैं। हाँ, मैं अभी बंद करने वाला ही था 5 मिनट में, लेकिन अभी करना तो करो। मैं हमारा 12 बजे बंद करने वाला था, अभी 4 मिनट बाकी है। हाँ हाँ हाँ। 4 मिनट के बाद में तो बंद करने अभी वाला अभी अब हमने को कितने मिनट चलाने का है? था। आपको आपको कितना चाहिए? नहीं, आपको आपको जितना टाइम हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, 20 मिनट 25 मिनट चला, वादा नहीं है। अभी तो क्या है, शुरुआत है ना आज। आज हमारा नया हम्म। टाइम पे शुरुआत है। तो हाँ हाँ, कोई बात नहीं। उषा मैं बहन क्या ध्रुव से चला? हूँ, उषा बहन करो छे। मैं ध्रुव हूँ, ओके, मुझे परिणति कर बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। देखिए, अभी हम और आपने पूज्य लालचंद भाई के माध्यम से 13वीं गाथा की शुरुआत की है। इसमें भूतार्थ नए से 9 तत्वों को या 7 तत्वों को जानने की बात है। और जो उन्होंने भूतार्थ शब्द का प्रयोग जो किया है, वो निरपेक्षता के एंगल से किया है। उसमें कर्म के उदय, उपसम, क्षय, क्षोभसम की या निमित्त आदि की अपेक्षा नहीं लेंगे, तब भूतार्थ होगा। एक बात और आई है उसमें, जरा अपन को थोड़ा सा गंभीरता से देखें कि ये 9 तत्व है ना, जो ये द्रव्य है, गुण है के पर्याय। अब जरा विचार करना गंभीरता से। यदि ये पर्याय हैं, तो पर्याय में भी एक भूतार्थपना होना चाहिए। हम और आप लोग बहुधा द्रव्य को अकेले भूतार्थ में देख लेते हैं, मान लेते हैं, और पर्याय को सभी को अभूतार्थ में मान लेते हैं। ऐसा अर्थ भाई श्री ने नहीं किया है। पर्याय में भी भूतार्थपना होता है, लेकिन यदि हम पर्याय के विशाल स्वरूप को नहीं देखेंगे, पर्याय की महानता को स्वीकार नहीं करेंगे कि उस पर्याय में कुछ भूतार्थपना भी छुपा हुआ है, यदि ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे, आपको पर्याय में 9 तत्व भूतार्थ से दिखाई नहीं देंगे। बात कुछ इस प्रकार से हम आपको बताना चाहते हैं कि एक तो भाई श्री ने भूतार्थ का अर्थ निरपेक्ष कहा है कि उसे कर्म के उदय, उपसम, क्षय, क्षोभसम या आत्मा। एक तो वाक्य इतना अच्छा लिया था भाई श्री ने, देखिए हम आपको पढ़ के बताते हैं कि उन 9 तत्वों का संबंध आप कर्म से जोड़ोगे तो भी अभूतार्थ है, और आत्मा से जोड़ोगे तो भी अभूतार्थ। आप लोगों ने ध्यान दिया हो? फिर से। हाँ, फिर से देखो। हाँ जी। उन 9 तत्वों के परिणमन को यदि आप कर्म सापेक्ष देखोगे तो भी अभूतार्थपना आएगा, व्यवहार नहीं आएगा। और उसे आत्मा से भी जोड़ोगे तो भी अभूतार्थपना आएगा। ना तो वो 9 तत्व पुण्य पाप संबंध मोक्ष कर्म की अपेक्षा से हुए हैं, न ही आत्मा से हुए, अपितु वह तत्समय की योग्यता से हुए। अब तत्समय की योग्यता तो पर्याय में होती है, तत्समय की योग्यता तो त्रिकाल होती नहीं है, अर्थात कि पर्याय में भी कुछ भूतार्थपना है। और भूतार्थपना क्या है, इसकी हमें खोज करनी है। होता क्या है कि बहुत से मुमुक्षु जीव पर्याय को इतना अभूतार्थ में या व्यवहार में डाल देते हैं कि वो एकांत में चले जाते हैं। अनेकांतपना कब बनेगा कि उस पर्याय में भी कुछ आपको निश्चयपना देखना होगा, खोजना होगा और मानना होगा। तो है होगा अर्थात कोई पराधीनता नहीं है, वस्तु व्यवस्था में पर्याय में भी कोई निश्चयपना हो, पर्याय में कोई स्वभावपना हो, पर्याय में कोई
इस टाइप का परिणमन हो जिससे हम उसे भूतार्थ से देख सकें। क्या होता है कि यदि पर्याय के पूरी की पूरी अभूतार्थ और उसमें भूतार्थपना कुछ भी नहीं हो, तो फिर 9 तत्वों को भूतार्थ से देखने से सम्यक दर्शन कैसे होगा? अर्थात ज्ञानियों ने 9 तत्व रूप पर्याय में कोई भूतार्थपना विद्यमान है ये देखा है ना, और हम तो ऐसा निर्णय करके बैठे हैं ये तो सब व्यवहार, ये पर्याय माने व्यवहार, पर्याय माने अभूतार्थ। क्या है कि आप जो हमारे हमें सावधान सोचो को पढ़ रहे होंगे तो 3 दिन पहले हमने एक बात डाली थी कि एक आवरण वाली पर्याय है, एक निरावरण वाली पर्याय है। जितना पर्याय का अंश प्रकट है हमारे आपके वेदन में आ रहा है, समझ में आ रहा है, उतना अंश निरावरण है, और जितना अंश होने पर भी हमारे आपके पकड़ में नहीं आ रहा है वो आवरण वाला है। वो आवरण वाला अंश निरावरण वाले अंश से कई गुना बड़ा है। अब जो लोग आप लोग पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, हमारे रजनी भाई जी ने निवेदन किया था कि साहब आप जो लिख के डालते हो हर किसी के पास पढ़ने का इतना समय नहीं होता है, लेकिन यदि आप किसी को बोल के भी डाल दो तो हम अपने दूसरे भी काम करते रहें और उसे सुनते भी रहें। रजनी भाई जी ऐसा नहीं होता है। यदि तत्व की बात को आपको सुनना या समझना है तो एकाग्र होकर ही सुनना समझना होगा। हम अपने दूसरे काम में भी व्यस्त रहें और तत्व भी चलता रहे, ये भजन नहीं है, ये पूजन नहीं है, ये तत्व की गंभीरता है। तो इसमें उपयोग की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। तो आज हम भाई श्री के प्रवचन के आधार से जो बात आपको बताना चाहते हैं, कुछ नई भी लगेगी आपको, कुछ विचित्र भी लगेगी आपको, कुछ क्रांतिकारी भी लगेगी आपको, लेकिन भाई श्री के मर्म को यदि आप समझ लोगे तो आपको सब सहज लगेगा, मैंने कठिन कुछ नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री भी कहते हैं कि जब तक नहीं समझे हैं तभी तक कठिनता है, समझ लिया बिन समझे मुश्किल, समझ लिया समझ पीछे सब सरल है और बिन समझे मुश्किल। तो आप इस कला को समझ लोगे कि पर्याय में भी कोई निश्चयपना है, पर्याय सारी व्यवहार है ऐसा नहीं है, पर्याय में भी कुछ ऐसा छुपा हुआ है 9 तत्व रूप पर्याय में कि जो भूतार्थ उसे विषय करता है। देखो हम थोड़ा सा पढ़ के बताएं आपको। 9 तत्वों में 9 तत्व से भिन्न एक चैतन्य मात्र ज्योति जो छुपी है हुई है उसे देखना है, पकड़ना है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये 9 तत्व जड़ में नहीं होते, कर्म की चर्चा यहाँ पे गौण है, और ये 9 तत्व जीव में ही होते हैं, और 9 तत्व को जब तक सापेक्ष पने से देखा जाएगा तब तक 9 तत्व अभूतार्थ होंगे। अर्थात पुण्य पाप कर्म के उदय से हुए देखोगे, पर के लक्ष्य से हुए देखोगे, जीव के स्वभाव को विस्मृत होकर के होते हुए देखोगे, तब तक वो पुण्य पाप अभूतार्थ। संबर नेजरा को जीव के लक्ष्य से होते हुए देखोगे, कर्म के अनुदय से होता हुआ देखोगे, विभाव के अभाव से होता हुआ देखोगे, तब तक वो संबर नेजरा अभूतार्थ है। हम तो हमेशा संबर नेजरा को आत्मा के आश्रय से ही देखते चले आए, मानते चले आए हैं। आत्मा के आश्रय बिना भी सम्यक दर्शन संबर नेजरा होती है, ये हमारे बात गले ही नहीं उतरती। पुण्य पाप पर के लक्ष्य से ही होते हैं, कर्म के उदय से ही होते हैं, ऐसा ही मानते रहे हैं। कर्म के उदय के बिना भी पुण्य पाप होते हैं, आत्मा की भूल के बिना भी पुण्य पाप होते हैं, ये हमारे गले ही नहीं उतरती ये बात, ये हमें स्वीकृति ही नहीं होती।
हमें ऐसे लगता है कि पुण्य पाप के परिणाम मैंने पर के लक्ष्य से पंच परमेष्टि परमागम के लक्ष्य से पुण्य होता है, पंच इंद्रियों के विषय भोगों के निमित्त के लक्ष्य से पाप होता है। लेकिन पर के लक्ष्य के बिना भी पुण्य होता है और पर के स्वा के लक्ष्य के बिना भी सम्मय होती है। ऐसा कौन सा विधान है? तो भाई श्री कहते हैं कि जब तुम उनकी योग्यता का विचार करोगे कि वह तत्समय की योग्यता से होते हैं और उसे तत्समय की योग्यता से विचार करने पर तुमने उनको भूतार्थ से जाना है। अब देखना है जरा, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि पुण्य पाप का कर्ता अभी भाई श्री ने सिद्ध किया था, ना तो जीव है और ना पुद्गल है। क्योंकि यदि पुद्गल करता हो तो ज्ञानियों को भी कर्म के उदय आते हैं तो ज्ञानी उनमें नहीं जुड़ करके पुण्य पाप रूप परिणमित नहीं होते हैं। अज्ञानी की तो अपन मान सकते हैं कि फिर अज्ञानी की दशा में भी देखा जाए कि डिग्री टू डिग्री कर्म का उदय हो आकर के डिग्री टू डिग्री हमें जुड़ना पड़े, ऐसा अज्ञान दशा में भी नहीं होता है। कई बार ऐसे कर्म के उदय आते हैं कि हमारे ही पड़ोस में बैठा हुआ हमारा भाई या हमारा रिश्तेदार अधिक दुखी होता है, हम उतने दुखी नहीं होते हैं, जबकि कर्म के उदय तो दोनों को संयोग एक जैसे आए हैं। इसका अर्थ क्या कि हमें एक बार पुण्य पाप को या सम्मान जीरा को हमें भूतार्थ से देखना हो, अर्थात पर्याय में भी कुछ निश्चय पना है। भूतार्थ का अर्थ निश्चय, तो पर्याय में भी कुछ निश्चय पना है, अर्थात पुण्य पाप के परिणाम निश्चय नहीं के विषय है। कभी विचार किया है? हमने पुण्य पाप के परिणाम को व्यवहार के खाते में डाल दिया है और अपनी खोज बंद कर दी है। पुण्य पाप के परिणाम भी निश्चय नहीं के विषय है। सम्मय को निश्चय नहीं का विषय अपन कह लें क्योंकि वो शुद्ध पर्याय है, वो तो बात थोड़ी बहुत समझ में आती है। यहाँ तो आश्रम को भी लिया था और आश्रम के और पुण्य पाप का भेद डालते हुए भाई श्री ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आश्रम का संबंध योग से जुड़ता है जबकि पुण्य पाप का संबंध योग से नहीं जुड़ता है। इसलिए उन दोनों में भिन्नता सिद्ध की थी। उस चर्चा को हमें आगे नहीं बढ़ाना है, हमें तो आज केवल इस चर्चा को आगे बढ़ाना है, सोचने के लिए आप सभी को मजबूर करना है कि पुण्य पाप के परिणामों में भी निश्चय छुपा हुआ है, अर्थात पुण्य पाप भी निश्चय नहीं के विषय है। अर्थात कोई एक ऐसा निश्चय नहीं होना चाहिए कि जो निश्चय भी हो और उसके विषय पुण्य पाप भी हो। कोई एक ऐसा भी निश्चय होना चाहिए कि वो निश्चय भी हो और उसके विषय सम्मरंजरा हो, आश्रवबंध हो। अब ऐसा निश्चय कहां से खोजेंगे? तो देखो, अशुद्ध निश्चय भी होता है, एक देश शुद्ध निश्चय भी होता है, परम शुद्ध निश्चय भी होता है। ऐसे निश्चय है कि कम से कम 7, 8, 10 भेद आगम में अलग अलग जगह गिनाए गए। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा है ना, वो भाई श्री ने एक देश परम ऐसे वो चर्चा नहीं ली। यहाँ पर भाई श्री ने योग्यता की चर्चा को मुख्य रूप से ग्रहण किया है। अर्थात अब हम देखें कि जीव में अनादि काल से अनंत काल तक जितनी भी पर्याय होती हैं, उन पर्यायों को आप यदि योग्यता के चश्मा लगा के देखोगे तो उनमें ना तो स्व का कर्तापना दिखेगा आपको, ना पर का कर्तापना दिखेगा। जब स्व पर का कर्तापना नहीं होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं जुड़ते हैं, तो वहां निश्चय नय का कथन माना जाता है। इस प्रकार से इन 7 तत्वों में यदि आपको निश्चयपना देखना हो तो आपको योग्यता का चश्मा लगाना होगा। लेकिन या तो हम पुण्य पाप को स्वरूप की विस्मृति से होने वाले परिणाम हैं ये चश्मा लगा के देखते हैं, अथवा कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले परिणाम है ये चश्मा लगा के देखते हैं। इसलिए हमें पुण्य पाप को भूतार्थ से देखने की कला ही प्राप्त नहीं होती। दूसरी बात,
कि आत्मा जो दृष्टि का विषय है, उसे यदि आपको सर्वथा अकर्ता रखना हो, अकर्ता मानना हो, निरपेक्ष स्वीकार करना हो, पर्यायों से अप्रभावित वस्तु को सुरक्षित रखना हो, तो आपको एक बार अनादि अनंत पर्यायों को योग्यता की चश्मे से देखना पड़ेगा। यदि आप योग्यता के चश्मे से नहीं देखने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं स्व या पर का कर्तापना लगाए बिना उसे नहीं देखोगे, और स्व का कर्ता लगाओगे तो आप अकर्ता नहीं रहोगे, पर का कर्ता लगाओगे तो पर को निमित्त मात्र नहीं रखोगे। एन केन प्रकार उस पर्याय पर निमित्त का प्रभाव या निमित्त द्वारा किए गए ये स्वीकार करोगे, और ये दोनों भूलों के कारण हम पर्याय मात्र को निश्चय से नहीं देख पाते। तब कोई कहेगा कि पर्याय तो व्यवहार का विषय है, क्योंकि वो तो भेद है। भाई साहब, सब जगह ऐसा व्यवहार लागू नहीं होता। क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं हूं, तो मैं पिता हूं, पुत्र हूं, पति हूं, भाई हूं, साला हूं, बहने हूं, ससुर हूं, तो सारे धर्म मेरे में है ना। लेकिन मैं किसी किसी की अपेक्षा से, लेकिन मैं मेरे में मैं हूं ना। मैं तो पिता हूं, ना पुत्र हूं, ना भाई हूं, ना साला हूं, ना ससुर हूं, कुछ नहीं हूं। मैं मात्र मैं हूं। बस इसी तरह से जब आप पर्याय को उसकी योग्यता से विचार करेंगे, न तो स्व के स्मरण या विस्मरण की अपेक्षा लगा के देखेंगे, न कर्म के उदय उपशम क्षय क्षोभशम की अपेक्षा लगा के देखेंगे, तब आप पर्याय को निश्चय से देख पाओगे। ये पर्याय में छुपा हुआ एक निश्चय से निश्चय है, और ये भूतार्थ है, और इस दृष्टि से हम पर्याय को देखते नहीं। इसलिए अनादि से हम और आपकी पर्याय को पलटने की, पर्याय को सुधारने की, पर्याय को बदलने की वासना जो अभी पंडित जी ने ली थी, वो पड़ी रहती। उस वासना से हम अपने को कभी परम अकर्ता महसूस नहीं कर पाते हैं, स्वीकृत नहीं कर पाते हैं, तो अकर्ता की दृष्टि नहीं बनती। और जब तक अकर्ता की दृष्टि नहीं आएगी, तब तक कभी भी आपको द्रव्य दृष्टि नहीं हो। द्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा में जो कहा है ना कि जीव करता है, तो वहां पे 10 प्राण अपेक्षा से करता कहा, भोक्ता भी कहा है। लेकिन यहाँ जो प्रकरण है उसमें अकर्ता का निर्णय करने के लिए, अकर्ता स्वभाव को, अपने उपयोग को अकर्ता स्वभाव तक ले जाने के लिए आपके लिए समस्त पर्यायों को योग्यता के दर्शन से देखोगे, तो आपको अपना कर्तृत्व या पर का कर्तृत्व दिखाई नहीं देगा। और जैसे जब निर्णय हो जाता है किसी जीव को कि ये चीज मेरे से नहीं होती है, तो उससे उपयोग सहज में हट जाता है। और इस योग्यता से भाई साहब क्रमबद्ध की सिद्धि होती है। और पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि क्रमबद्ध उसी को स्वीकृत होता है जिसकी द्रव्य दृष्टि होती है, अर्थात क्रम नियमित परिणामों के परिणमन से जिसका उपयोग हट गया है, कर्ता और भोक्ता की बुद्धि हट गई है, उसे द्रव्य दृष्टि होती है। और देखना जरा गंभीरता से, द्रव्य दृष्टि निश्चय के आश्रय से होती है। बहुत गंभीर बात आपको बताने वाले हैं। यदि आप पर्याय में भी निश्चयपना नहीं देखोगे, द्रव्य में तो निश्चयपना आप देख लेते हो, और पर्याय में भी निश्चयपना नहीं देखोगे, तो आपकी द्रव्य दृष्टि नहीं होगी। द्रव्य और पर्याय में जिसने दोनों में निश्चयपना देख लिया है, उसकी निश्चय दृष्टि होती है। तो पर्याय की निश्चयपना क्या, ये पर्याय को भूतार्थ से देखो, पर्याय को होने योग्य देखो, पर्याय को कर्मबद्ध देखो, पर्याय को मेरे द्वारा होती है ये मत देखो आप, पर्याय कर्म के द्वारा होती है ये मत देखो आप। ये रोग न जाने कहां से लग गया है हम और आपको, कि पर्याय को कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में या तो हम अपना कर्तापना देखते हैं या कर्म का कर्तापना देखते हैं। स्वतंत्र क्यों नहीं देखते हो? वस्तु की स्वतंत्रता ही तुम्हें मोक्ष मार्ग दिलाएगी, परतंत्रता नहीं। इसलिए रजनी भाई और समस्त मोना के मुमुक्षु लोगों, आपसे निवेदन है
कि भाई श्री के एक एक मर्म को गहराई से थोड़ा देखने का प्रयास करें। देखिए, अजीब के लक्ष्य का विकल्प अजीब कहा था और उसे भूतार्थ से देखने के लिए ये कहा था कि वह अजीब अजीब के लक्ष्य से नहीं हुआ है, बल्कि अजीब को जानना वाला ज्ञान को यहाँ अजीब संज्ञा है, और वो ज्ञान अपनी योग्यता से हुआ है ऐसा जानो। वो ज्ञान हमने किया है या हमने लक्ष्य पूर्वक करके अजीब का ज्ञान किया है ऐसा मत जानो। जो जीव पर्याय मात्र को, उसमें 9 तत्व सभी आ गए, भूतार्थ से जानता है, अर्थात उनकी योग्यता से जानता है, उसका कर्तृत्व भी नहीं मिट जाता है, कर्तृत्व भी नहीं रहता है, और आगे चले ज्ञातृत्व भी नहीं रहता है। मैं आपको बताऊं कि जैसे भारत की राजनीति है, उसमें अमेरिका वालों का कुछ नहीं चलने वाला है या आपका नहीं चलने वाला है, तो आप भारत की राजनीति से सहज में उपयोग हटाओगे कि नहीं हटाओगे, कि लगाए रहोगे? या अमेरिका की राजनीति में हम भारतीयों का कुछ नहीं चलता है, हमने एक बार दृढ़ता से स्वीकार किया है, तो वहां पे उपयोग जाएगा तो वहां से हटेगा। इसी पर्याय की राजनीति में तत्समय की योग्यता चलती है, हमारा या कर्म का कुछ नहीं चलता है। ये निर्णय जिसे हो जाता है वो पर्याय मास से दृष्टि हटा लेता है। ये बोध बीज पर्याय मास से दृष्टि हटा के दिव्य दृष्टि कराने का है। चलिए, हमारे अनुसार 9:30 बज चुके हैं। अब इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है, और बंद करना हो तो बंद भी कर सकते हो आप। नहीं, बहुत अच्छा रहा। आपने अच्छी बात की। माने पर्याय के आ, स्वतंत्रपने होना, वही अकर्ता का बनने का उपाय है। वही भूतार्थ बना है उसका। हम्म। अभी ये समझने से हमें आत्मज्योति कैसे प्राप्त होगी? हम्म। क्या पूछिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। ऐसा पूछ, ये समझने से हमें जो आत्मज्योति 9 तत्वों में जो छुपी हुई है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने ये हमारा विषय अधूरा रह गया था, आपने इसका पूरा कर दिया। बहुत मजा आ गई हमारे लिए। ये समझ लो मेरे मन का प्रश्न आपने कह दिया है। देखो जरा ध्यान से कि 9 तत्व खड़े कैसे हुए, या तो आत्मज्योति को भूल के या आत्मज्योति को स्मरण करके। तो आत्मज्योति थी, भूले तब तो पुण्य पाप आश्रमबंध खड़े होते हैं, और आत्मज्योति थी, स्मरण किया तो समरहिरा मोक्ष खड़े हुए। तो थी तब भूलना होगा कि नहीं थी तब भूलना होगा, थी तब याद करना होगा कि नहीं थी तब याद करना होगा। तो थी, यही तो हम कह रहे हैं कि 9 तत्व में आत्मज्योति छुपी हुई है। आप देख लो भाई, जैसे कि आपकी अंगूठी है और आप किसी के पास अंगूठी है ही नहीं, वो कहे मैं अंगूठी भूल गया, होगे तब तो भूलोगे ना। पुण्य पाप के काल में, आश्रम बंध के काल में आत्मा होता है, उसे भूलना होता है। सम्मनेजरा के काल में आत्मा होता है, उसे याद करना होता है, स्वीकृत करना होता है। इसलिए चाहे आश्रम बंध पुण्य पाप रूप पड़ोबन हो, उसमें भी आत्मज्योति है, या उसका आत्मज्योति का भूलना है, और उसमें भी आत्मज्योति है, उसमें आत्मज्योति का स्मरण है। माने एक भी पर्याय जीव की अनादि काल से ऐसी नहीं होती है जिसमें आत्मज्योति छुपी ना हो, लेकिन हम उसे प्रकट ऊर्ध नहीं कर सकते हैं, कर पाते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। नहीं पंडित जी, ये बराबर समझ में नहीं आया। आत्मज्योति है, इसके लिए संवर है, नजरा है, पुण्य पाप है, तो हमारा एकत्व आत्मज्योति से कैसा होगा? क्या है, आप उसके कारण को देखो। मैंने देखना, अभी हम उसको सापेक्षता से देख रहे हैं, अभी निरपेक्षता से नहीं देख रहे हैं कि पुण्य पाप और आश्रव बंध का कारण क्या है, आत्मज्योति को भूलना।
सम्मनेरा मोक्ष का कारण क्या है? आत्मज्योति को याद करना। तो 9 तत्व में मेन केंद्र बिंदु तो आत्मा रहा ना, और जो मेन रहा है वो उसी को स्वीकार नहीं करो, उसी को कारण मत मानो आप, तो उसमें छुपी हुई दिख गई। क्यों? कि थी, नहीं स्वीकार किया, इसलिए आश्रम पुण्य पाप हुए। थी, स्वीकार किया, इसलिए सम्मनेरा मोक्ष हुए। तो करना यही है। आप कहते हो जबरदस्ती कैसे हो? क्योंकि वो होने योग्य हुए हैं, ये तो शुद्ध ने है। अब अशुद्धता की विचार से करें, अभूतार्थ नहीं की विचार करें, तो उसमें कारणपना खोजेंगे। तो कारणपना क्या है? कि आत्मा होने पर भी उसकी अस्वीकृति, उसका नाम आश्रम पुण्य पाप। आत्मा होने पर उसकी स्वीकृति, उसका नाम सम्मनेरा मोक्ष। तो दोनों में आत्मा की सत्ता तो मौजूद ही रही। अब इसमें से निश्चय निकाले, ये तो अभूतार्थ से हुआ कि वो होने योग्य हो गया और उन सबके बीच में मैं यूं का यूं रह गया। ऐसा समस्त पर्यायों से अप्रभावित, त्रिकाल, एक रूप, शुद्ध, पंचम परम पारिणामिक भाव मैं हूं, इसकी ऊर्ध्वता, इसका नाम है 9 तत्व में आत्मज्योति व्यापी है, और उसकी स्वीकृति से सम्यक दर्शन होता है। बहुत बढ़िया बात है। ऐसा एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चन? रमेश जी, यहाँ जो आपने जो योग्य तत्समय की योग्यता से लिया ना बात, तो फिर वहां हम एक समय की सत से भी ले सकते हैं पर्याय को। पर्याय की एक समय का जो सतपना है ना, वो हिसाब से भी वो पर्याय भूतार्थ ले सकते हैं। हाँ, तो इसमें हमारा आपसे प्रश्न है हम्म, कि पर्याय में एक समय का सतपना है ना, जो हाँ ध्यान से सुनो जरा आप। सत तो कहते हैं उत्पाद में, ध्रुव को सत कहते हैं। तो पर्याय में उत्पाद क्या है, पर्याय में व्यय क्या है, और पर्याय में सत क्या है, इसकी खोज करो। और नहीं हो, अगले सेशन में हम बताएंगे कि पर्याय में क्या सत है, पर्याय में क्या उत्पाद है, और पर्याय में क्या व्यय है। यहाँ पर द्रव्य की हम सत की बात नहीं कर रहे हैं, पर्याय के सत की बात कर रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि पर्याय का सतपना है, वो पर्याय का सतपना कैसे है, उसकी चर्चा के लिए आध घंटा चाहिए। तो अगले सेशन में ले लेंगे। कहो। दूसरी एक बात हाँ। हाँ उषा बेन कर लो तुम्हें। नहीं, मैं तो आज जो आप बोलते हैं ना सतपन्ना, पर्याय की सतपन्ना, वो प्राप्य विकार्य वो होता है ना, निवृत्ति वाली बात, वो पर्याय में बैठ जाती है। मगर यहाँ तो अपन को सतपना माने, जैसे आश्रव अधिकार में भी बोला है कि आश्रव वस्तु है। आश्रव वस्तु है, वस्तु होती है तो वो स्वभाव होता है, वो स्वभाव होता है। तो यहाँ हमें पर्याय स्वभाव से देखना है, और पर्याय स्वभाव भी एक समय का सत स्वभाव है। वो हिसाब से भी हम ये भूतार्थ की बात चलती है ना गाथा 13 में, वो समझ सकते हैं। हाँ, माने वो सतपना है। यहाँ पर भाई श्री ने जो लिया है वो योग्यता की मुख्यता से लिया, और हाँ, वो योग्यता तो है ही, मगर ये सतपने से भी हम समझ सकते हैं। हाँ, समझ सकते हैं। और क्या है कि योग्यता को कोई टाल नहीं सकता है, तो योग्यता को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसलिए जिन जीवों ने समस्त पर्यायों को उनकी योग्यता से निर्णीत कर लिया है, वो पर्याय से दृष्टि सहज हट करके द्रव्य में आ जाती। पर यहाँ क्या होता है रमेश जी, यहाँ योग्यता भी पर्याय है, वो भी थोड़ा योग्यता भी पर्याय है ना, तो वो थोड़ा क्या है, हमने दशमी तो पर्याय में ही होना है ना, द्रव्य में थोड़ी होना है ना। वो तो ठीक है, मगर अगर हम आपको तत्समय की योग्यता से लेना है, तो योग्यता हमें तो पर्याय को स्वभाव से देखना है, पर्याय को भूतार्थ से देखना है। तो फिर वहां फिर पर्याय की बात चल आएगी ना। हमें अगर सत देखेंगे तो वो सतपना से वो भूतार्थ लगेगी, जैसे सत है सफल भूतार्थ। देखिए, एक आपसे हमारा प्रश्न है कि आप पर्याय को भूतार्थ से या सतपने से क्यों देखना चाहते? क्योंकि उसको पागलपना तो नहीं है? हाँ, हमें अलग से ही देखना है ना, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव अलग देखना है। नहीं,
हमारा इसका उद्देश्य द्रव्य दृष्टि कराना, स्वभाव दृष्टि आना। तो यदि बराबर। हमारा सतपना देखने से या योग्यतापना देखने से द्रव्य दृष्टि नहीं आती है तो हमारे सारी की सारी एक्सरसाइज बेकार जाएगी। बराबर है। ओके है तो हाँ। अब चूंकि अनुभूति भी पर्याय में है, योग्यता भी पर्याय में है और उसका निर्णय करना भी पर्याय में। अब क्या होता है कि द्रव्य तो निर्णय करता नहीं है, द्रव्य तो अबोला है, मौनी बाबा है, उसे तो कुछ करना नहीं है, लेकिन जो कुछ काम होना है पर्याय में होना है। तो पर्याय में पर्याय पने की भूल से पर्याय दृष्टि नहीं मिटती है, और पर्याय में स्वभाव पने की भूल से स्वभाव दृष्टि नहीं आती है, और पर्याय दृष्टि से पर्याय मूड बना रहता है। तो पर्याय दृष्टि क्यों है कि पर्याय की योग्यता और सत्पने का निर्णय नहीं है। हाँ, ठीक पर्याय है। में पर्याय की योग्यता और सत्पने का निर्णय होगा तो पर्याय दृष्टि मिटना नहीं रहेगी। हाँ, बराबर है। रंजना हाँ, बहन एक आप बोलो। हाँ हाँ, दूसरी ये योग्यता की बात है ना, तो हम जो क्रमबद्ध पर्याय है, तो हमारे ज्ञान में जब सब क्रमबद्ध ही आएगी, जो भी ज्ञान की पर्याय है, तो રાગ બી આएगा ના, અમારા જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે ને, તો ઈ પણ એની ક્રમબદ્ધમાં એનું બી છે, એટલે એનું પણ રાગની પર્યાયનું પણ એનું સ્થાન ક્રમબદ્ધપણામાં છે, એટલે ઈ પોતાના સમય આવશે, પોતાની યોગ્યતાને ऐसा भी ले सकते हैं ना। आपका प्रश्न क्लियर नहीं हुआ हमारे लिए, आप क्या हाँ, कहना चाहते नहीं, हैं? हम ज्ञान की हम क्रमबद्ध पर्याय लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि ज्ञान में सब पर्याय क्रमबद्ध है, एक गई दूसरी आई, उसका क्रम पहले से डेस्टिन था। तो अभी ये जो अभी गुजराती बोलो, गुजराती बोलो, गुजराती बोलो, गुजराती चाल हाँ से। નક્કી था હા, એટલે ઈ બધું ક્રમબદ્ધ છે, તો જે રાગ આવ્યો ઈ પોતાની મેળે તો જણાતો નથી, ઈ તો જ્ઞાનની પર્યાયમાં જણાય છે, એ તો જ્ઞાનનું જ્ઞેય થાય છે, તો ઈ જ્ઞાનની પર્યાયમાં રાગ એ સમય આવશે, એ પણ ક્રમબદ્ધ છે ને, તો ઈ બરાબર છે। એટલે રાગ પણ ક્રમબદ્ધ છે, એટલે એની નિરપેક્ષ રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે કર્મને લીધે નથી આવી કે આપણા આત્માથી શુદ્ધાત્માના લક્ષ્ય નથી, લક્ષ્ય તો નહીં પણ એને લીધે બી નથી આવી, તો આપણે એ નિરપેક્ષ રીતે જ્ઞાનના જ્ઞેયમાં જેવી રીતે આવી છે એવી રીતે એને નિરપેક્ષ જોઈ શકીએ, એટલે ભૂતાર્થ નહીંથી, એમ કહેવા માંગુ છું। नहीं, बात बराबर है। खरेखर तो राग ने क्रमबद्ध में कोण निर्णय करे जे आ जाने छे कि मारी ज्ञाननी पर्याय रागने कारणे नहीं थई छे। मारी ज्ञाननी पर्याय में जे रागनो ज्ञान थयो छे एनो कारण हूँ ज मारी ज्ञाननी पर्याय छे, एनी योग्यता छे। राग में ज्ञान नहीं और ज्ञान में राग नहीं, ज्ञान में ज्ञान छे, राग सादृश्य जे ज्ञान थयो छे ए ज काले कार्यत्व गुण में रागनो प्रणमन हतो, ए ज काले ज्ञान में एनो जाणवानो स्वभाव हतो, राग आकार प्रणमानो। दोनों बन्ने नो एक हारे प्रणमन होवा छता बन्ने पोत पोताना स्वतंत्र योग्यताओ क्रमबद्ध में सतरूपे प्रणमे छे। एज काले एनाथी भिन्न हूँ त्रिकाली ध्रुव सत्र हूँ छू, एवो जे निर्णय करे एनो राग थी दृष्टि हटी जाए और स्वभाव दृष्टि आवी जाए। बराबर, बहुत सरस। બરાબર ઓકે રમેશભાઈ તમે લઈ લો છો જીનવાણી નાની જીનવાણી जी જીનવાણી લો છો તમે नहीं तमे लई लो जिनवाणी, कोई पण नहीं। ઓકે ઓકે કોઈ લેવું છે કોઈને ઓકે નાની છે જાવાણી કે જ્ઞાન તે સુજે લોકાલો સોવાણી મસ્તક નમો સદા દેત હું ઢો નવો કાર મંત્ર નમો રિયંતાણંગ નમો સિદ્ધાણંગ નમો હરિયાણંગ નમો વેદાણંગ નમો લોહી સવ સાવણમ નમો રિયંતાણંગ નમો સિદ્ધાણંગ નમો હરિયાણંગ નમો વેદાણંગ નમો લોહી સવ સાવણમ નમો રિયંતાણંગ નમો સિદ્ધાણંગ નમો હરિયાણંગ નમો વેદાણંગ નમો લોહી સવ સાવણમ નમો રિયંતાણંગ નમો સિદ્ધાણંગ નમો હરિયાણંગ નમો વેદાણંગ નમો લોહી સવ સાવણમ નમો રિયંતાણંગ નમો સિદ્ધાણંગ નમો હરિયાણંગ નમો વેદાણંગ નમો લોહી સવ સાવણમ નમો રિયંતાણંગ નમો સિદ્ધાણંગ નમો હરિયાણંગ નમો વેદાણંગ નમો લોહી સવ સાવણમ
નમો હરિયંતાણંગ નમો સિદ્ધાણંગ નમો હરિયાણંગ નમો વૈદાણંગ નમો નો એ સબ સાવણમ નમો હરિયંતાણંગ નમો સિદ્ધાણંગ નમો હરિયાણંગ નમો વૈદાણંગ નમો નો એ સબ સાવણમ નમો હરિયંતાણંગ નમો સિદ્ધાણંગ નમો હરિયાણંગ નમો વૈદાણંગ નમો નો એ સબ સાવણમ. બોલો સર્વ અંતર્મુખ મુદ્રાધારી જિનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો. દ્વાદશાંગ જય હો. દ્વાદશાંગ જિનવાણી મહાત્નો જય જય હો. જય હો. વનમાં વિચરતા ભાવલિંગી સંત મુનિરાજનો જય હો. જય હો. પરમ ઉપકારી પરમ કૃપાળુ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીનો જય જય હો. સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય કાળુ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.